Good afternoon, everyone. I would like to express my deep gratitude and pleasure to all of you for joining event for today. I warmly welcome you all to this webinar. And before we begin, I would also like to express my deep gratitude and pleasure to Dr. Malvika Jain. Thank you, ma'am, for being present here. Thank you for this. We're going to have we really expect a wonderful session. So, on behalf of the entire Council Minds team, I would like to welcome you in this webinar. Thank you so much, Rishabh. Yes, ma'am. So, before we begin, I would like our participants to know a brief introduction about our guest speaker. Dr. Malvika Jain, ma'am, holds doctorships in naturopathy and has opted signature science and numerology as her full-time career. In the year 2019, she founded Manka Academy, which is an institute of graphology and numerology. At present, she provides consultations and workshops on signatures, name numerology, mobile numerology, and wristwatch. Also, before we begin with our session, I would also like to let our participants know about Council Minds as well. So, the vision of Council Minds aims to provide mental health support to masses while actively developing a platform to introduce SOTA methods in delivering psychoeducation. It also envisions to create a platform for people from different walks of life to come and talk about mental health, alternatively spreading awareness. Our mission is to develop a strong and secure platform to advocate mental health, to build a psychological ecosystem, to promote psychoeducation. So, ma'am, without any further delay, I would like to request you to begin with the session. Over to you, ma'am. Thank you so much, Rishabh. And I had shared my presentation with Jagrati. Yes. If you could just start that. Yes. Good noon, everyone. I hope I'm able to communicate with you. If you could just start your cameras, that would be an interactive session so that we can just learn from each other. In terms of knowing something, I'm also going to ask a few questions. So I hope you all are ready with that. Just a second, ma'am. I'm sharing my screen. Sure. Thanks, Hitesh. Starting your camera. Yes, ma'am. More people, please. Fine. Now, today's workshop, the topic we have taken, the procrastination. So I hope everybody knows about the procrastination if we start with. So I just want to know from you all that what exactly you understand by the procrastination. Like means when we are not, we know we are having the work, but we are not willing to work and just we spend whole day watching Netflix and scrolling the Instagram. That's true. Everybody does so. Even I do that. Yes. And somebody messaged that delaying task, delaying something. Absolutely. Procrastination. And how many of you know about the psychology part here? Anyone who knows something about bit about the psychology? That what is the mindset behind this? Means like instant means dopamine release, and we get instant relief and sense of accomplishment. Yes. All right. Very good. You have just given me some good idea about this, that what exactly the psychology behind this. Anyone else who would like to share something? If they know anything about the procrastination, or maybe what is the psychology behind this? Anyone would like to share? Maybe we can say that psychology behind procrastination is, as humans, we tend to
gain instant gratification, and we delay the things that are important for us, and we try to do things that give us immediate satisfaction instead of doing things that are important. Yes, Kajal, absolutely. Because the satisfaction what we get from the immediate task we do. So that is the immediate gratification, and we feel satisfied that yes, we have done this. So this was our priority. But yes, there are few more things which we are going to discuss. So today, in just 4 steps, we are going to understand about the procrastination. Whosoever tried, I think Hitesh and Kajal, they both tried to communicate with me. So I just want everybody should participate so that we can just learn from each other. Rishabh, can we move to next slide? Yeah, next. I think everybody got to know about me. All right, so as I mentioned that within 4 steps, 4 simple steps we are going to learn. I wanted to make this session from Graphology. You can learn something. आप कुछ लेके जाओ यहाँ से, because Graphology, if I simply say about Graphology, so you have a lot of information on internet available that what exactly Graphology is. To understand your handwriting and signature, that is Graphology. I'm also a numerologist. With the help of numerology, like your date of birth or your name, then also we can just identify. But something which we need to हम खुद से कैसे जानेंगे, तो आज ग्राफोलॉजी की कुछ हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स भी अप्लाई करेंगे, कुछ प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. So I just want everyone to be ready with a pen and paper, because ये analysis you are going to do it yourself. So if you do not have pen and paper handy with you, just go and grab that. और जो पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं, तो वो अपने हैंड रेज अगर करने का ऑप्शन है यहाँ पर, तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. ओके, मलिका गुप्ता, हितेश कुमार. ऑल राइट. ओके, जागृति, शी इज ऑल्सो हैविंग. Malika, okay. Good, very good. Any kind of paper will do. Any piece of paper will do. Okay, chalo Rishabh, next slide please. Actually you have just started this way, normal तरीके से आई नहीं. All right, procrastination हम already समझ चुके हैं. The procrastination is something that we delay something. और हम delay करते क्यों हैं? हम सबसे पहले इस reason को भी जान लेते हैं. Why we do that? Because we are we are afraid of failing on something. जो हम लोगों ने एक future में एक task हमें define किया हुआ है. We always think this way. Just a moment, please. हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो टास्क हमें करना है, सपोज करो इफ एनी पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम सर पे बैठे हुए हैं, और हम लोग सोचते हैं अभी पढ़ लूंगा, थोड़ी देर में पढ़ लूंगा, दैट्स वेरी इजी, देन आई विल डू इट इन सम टाइम. अभी के लिए चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स आए हुए उनके साथ थोड़ी सी चिट चाट कर लेते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कर लूंगा, इट्स वेरी इजी. जैसे जैसे टाइम पास आते जाता है, तब उस वक्त हमारी थोड़ी और घबराहट बढ़ती जाती है, और उस चक्कर में हम लोग और ज्यादा, और फ्रस्ट्रेशन भी हमारे पास आ जाती है. तो अल्टीमेटली होता क्या है, या तो हम ये सोचते हैं कि जो टास्क हमारे हैंड में है दैट्स वेरी इजी, और वी थिंक दिस वे दैट आई एम अफ्रेड कि अगर मैं उसको नहीं कर पाया, टाइम से कर लिया, लेकिन फिर भी इफ आई मैं उसको करने में फेल हो गया, तो वो भी एक उसके अंदर प्रॉब्लम रहती है. तो लोगों के साथ ये एक थोड़ी सी खींचमतानी अपने आप में ही चलती रहती है, विच इज समथिंग जो इनके अंदर एक हार्मोन्स भी ऐसे सिक्रीट करते हैं. स्ट्रेस उनके अंदर आता है कि एक तरफ डर भी लग रहा है फेलियर्स का, कि कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो उसके लिए फेलियर्स हो रहे हैं. अगर इजी है तो हम ये सोचते हैं कि इट्स वेरी इजी, आई विल डू इट. लेकिन जब टाइम हमारे पास कम बचता है, तो उस केस में भी हम करने से वहां पर उसको फाइनल अकम्पलिशमेंट उसका होने में वहां पर हम डिले करते रहते हैं. तो आजकल वैसे भी हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए हैं. डिस्ट्रैक्शन जैसे कि यहाँ पे हितेश ने बताया, नेटफ्लिक्स,
नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, यूट्यूब पर है, हम इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं। कुछ लोगों को हैबिट हो गई है आजकल रील्स बनाने की, स्टोरीज़ बनाने की, तो वो कर रहे हैं या फिर स्टोरीज़ चेक करते हैं। इवन आई डू इट समटाइम्स कि रात को सोते वक़्त ना, सोना होता है, नींद आ रही होती है, पर स्टोरी स्क्रॉल करने लगो तो फिर वो उसमें 1 आवर किधर चला जाता है पता नहीं चलता। तो ऐसे ही होता है। यस मलिका, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। ओपन चेक, ओपन क्यू, ओके। राइट। ऋषभ, नेक्स्ट स्लाइड पे चले क्या? आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि या तो हम थोड़ा डर जाते हैं। साइकोलॉजी आपको पता ही चल गया कि साइकोलॉजी ये है कि हम उस चीज से थोड़ा सा डिले करते हैं। हम सोचते हैं कि अपने आप को हम ईज डाउन कर रहे होते हैं उस चीज को सोच के। सुबह मॉर्निंग में उठने से पहले अगर हम अलार्म लगाते हैं और उसको हम लोग कितनी बार स्नूज करते हैं, 5 मिनट्स, चलो और 2 मिनट्स और 2 मिनट्स। अगर मम्मी भी उठा रही है तो हम लोग कहते हैं चलो 2 मिनट और, 2 मिनट में उठता हूँ। उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि मैं तो 5 मिनट में रेडी हो जाता हूँ, मुझे तो 5 मिनट ही लगते हैं बस तैयार होने में, तो व्हाट इज द बिग डील। और फिर उस चक्कर में होता ही है कि हम लोग भागते अपने काम पूरे करते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं यार अगर जल्दी उठ जाता तो मेरे सारे काम पूरे हो जाते। तो द साइकोलॉजी इज ईदर वी फील वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट आवर स्टफ, or we feel कि I am I can fail in that task, I can be failure, और लोग मुझे मजाक बनाएंगे या लोग मेरा उस वक्त कुछ मेरी लेग पुलिंग करेंगे या मेरे को कुछ अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो मे बी दैट इनसिक्योरिटी टू फेस पीपल द वे आई एम, until unless you are not going to accept the way you are, तो लोग भी आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का पर्पस यही होता है, अपने आप को सेफ गार्ड करना। हम किसी भी सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं और हमें लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग इट्स कोई बात नहीं, स्क्रॉल कर सकते हो, व्हाट आई एम डूइंग तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है बिकॉज मेरा नजरिया मुझे पता है, इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। पहला स्टेप टू अंडरस्टैंड द प्रोक्रेस्टिनेशन। सेकंड स्टेप, स्क्रॉल कर लो। सेकंड स्टेप में आई हैव दिस टास्क, जो पेन पेपर आपने लिया है विद द फुल स्पीड, अपनी राइटिंग की जो मॉडरेट स्पीड में जिसमें आप लिखते हो, जस्ट कॉपी दिस। इस एग्जैक्ट मैटर को आप देख के यहाँ से कॉपी कर सकते हो। आप चाहो तो ये वाली पिक्चर आप जो भी नंबर आपके पास है, जहां से भी आपको कम्युनिकेट हुआ है इस मीटिंग के बारे में, यू कैन जस्ट सेंड देम, आई विल कलेक्ट इट लेटर। अपना नेम और आज की डेट जरूर लिखिएगा। However, the surface is not hospitable to humans or most known life forms due to the radiation, greatly reduced air pressure, and an atmosphere with only 0.16% oxygen. Human survival on Mars would require living in artificial Mars habitats with complex life support system. जब आप लोगों का डन हो जाए तो आप बता दीजिए, अनम्यूट करके यू कैन जस्ट से, और मे बी यू कैन जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर डन। Exactly, Ashwin, you need to write the same thing so that we can identify. In fact, आप लोग खुद आइडेंटिफाई करोगे कि अगर आप में से किसी के अंदर ये ओके जागृति, अगर आप लोगों के अंदर ऐसे कोई प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रेट्स हैं तो हाउ यू कैन एलिमिनेट इट। डन, ऑल डन। नंबर कौन सा आप बोलते थे? जिस नंबर से आपके पास ये गूगल मीट का लिंक आया है, आप उस नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर आपके पास कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया है तो आप वहां पर पोस्ट कर दीजिए,
with your name written on that paper. I will drop the message in the group right now, just so All right. it would be easier for the participants. Fine, you coordinate with this. All right, shall we move to the next slide now? Okay, अब आप लोगों ने करना ये है कि I am going to tell you few of the traits. उसको आपको identify करना है whether you have those traits in your writing or not. So this is going to be a third step to identify whether we have those traits or not. जिनके पास नहीं है तो वो तो purely उस category में आते ही नहीं है. But yes, subject is interesting. You can learn about this. Yes, next please. Next slide, please. Okay. Did I do anything because I am not able to? अच्छा ये full screen आएगा क्या? Maximum I could do this. अच्छा ठीक है, no problem. इससे पहले वाला slide लेना. Yes, ma'am. देखो ग्राफोलॉजी है क्या? ग्राफोलॉजी is the study of the handwriting and signature. हमारे जो हम राइटिंग के अंदर ही हमारे जो पार्ट्स हैं, और हैंडराइटिंग होती क्या है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के इम्प्रिंट्स होते हैं. सबकॉन्शियस माइंड इज अ वेरी पावरफुल टूल कि हम अगर कोई भी हैबिट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. इनफैक्ट देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस कि जो हम इन एक्चुअल हम ऑब्जर्व करते भी नहीं हैं तो भी वो सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच करता रहता है. अननोइंगली हमारी राइटिंग में भी, चाहे हम लोगों ने कहीं से देख के लिखा या कुछ ऐसा लिखा जो हमारे पास अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कई बार स्पीड के अकॉर्डिंग, तो ऐसे कुछ ट्रेट्स आ जाते हैं जो हमें डिले करने की एक हैबिट हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है. जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस एंड साइन, कि ये वाला जो एंड बनाते हैं ना, यहाँ पे कहीं से पेन निकलेगा क्या? अच्छा व्हाइट बोर्ड, फाइन. इसी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ पाएगा बिकॉज आई एम नॉट गुड विद दिस. अच्छा तो इसको कैसे सिखाएंगे? बिकॉज आई वांटेड टू टीच यू आल्सो दैट हाउ टू राइट द करेक्ट फॉर्मेशन. If you are on laptop, there is whiteboard option. Yeah, I left have corner. started new whiteboard. Let me just check it if I could be able to. So if I start this whiteboard, can I be able to write something here? No. I would have to, I think, close the presentation and then you can write. Okay, no problem. First of all, we'll understand this and then इसके बाद हम लोग will just do the working part, the learning part. देखिए सबसे पहला ये वाला जो एंड है ये किस किसकी राइटिंग में आ रहा है? अच्छा मलाइका. ओके मलाइका. और किसकी राइटिंग में आ रहा है? जागृति की भी आ रहा है. वेरी गुड. ओके और किसकी राइटिंग में आ रहा है? बस. और भी कोई है? अनम्यूट करके बोलें. बहुत सारी चीजें सीखनी है, फटाफट बोलिए. ओके चलो देखिए ये वाला जो एंड आ रहा है, तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी मीटिंग के लिए या कहीं पर आपको पहुंचना होता है, यू स्टार्ट फ्रॉम योर प्लेस ऑन द राइट टाइम, लेकिन जब आप वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं टाइम से, कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हो जाता है कि आप किसी भी मीटिंग के लिए या किसी भी प्लेस पर जहां पर आपको एग्जैक्टली पहुंचना है वहां पर आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं. ऐसा हो रहा है आपके साथ? टाइम से तो निकले थे घर से बट पहुंच नहीं पाए दूसरी जगह टाइम से. हो रहा है? ओके जागृति के साथ भी हो रहा है. तो अब आप इसको क्या बोलोगे कि भाई मेरे पीछे तो कोई पड़ा हुआ है, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने घर से निकल के उस काम को पूरा टाइम पे करने की, बट मेरे साथ हो ही नहीं पा रहा. कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी का कॉल आ जाता है, कभी मुझे जो ड्रॉप करने के लिए आए हैं, कभी कैब नहीं मिली, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, कभी मेरे ड्राइवर के साथ ऐसा हो गया. तो ऑल दोस काइंड ऑफ इश्यूज वो लगे रहते हैं. Why this happens? Because you have given this message to universe. See, I just do not want to reach on time. I do not want to complete my task on time.
because you have created these strokes. That means this is your message and universe is very calm. He is ready to provide you whatever you have asked for. तो यहाँ पर यही हो रहा है, इस तरीके के एंड के फॉर्मेशन को बना के आपने अपनी लाइफ में अंदर ये एडिशन कर लिया है, ये एडिशन कर लिया और यूनिवर्स मैसेज दे रहा हो. यूनिवर्स इज वेरी लॉयल टू यू और वो कह रहा है कि इतने प्यार से मेरे बच्चे ने मांगा है तो मैं कैसे नहीं दूंगा उसको. तो वो आपको बोलता है कि ठीक है, फिर आप तथास्तु. तो हर बात में तो यूनिवर्स तो इज वेरी काम एंड कंपोज, जो मांगोगे वो दे दूंगा. आप टेंशन मांगो वो भी दे दूंगा, हाजिर है आपके लिए, तो वो भी देता हूँ. चलो अब बताओ, ये वाला जो फॉर्मेशन है एच में, ये एक्सटेंडेड, इसको लेग स्प्रेड बोलते हैं. तो दिस काइंड ऑफ लेग स्प्रेड, डू यू हैव योर एम, एन और एच लेटर इन योर राइटिंग? मेरे वाले में सिर्फ एच इस तरह से, लेकिन एम एंड एन नहीं है. ठीक है, एम, अच्छा ठीक है, एम और एन आपके लेटर के बीच में आ रहे हैं या कोई ऐसा भी है कि लेटर लास्ट में आया है, एन और एम? क्योंकि ये नॉर्मली लास्ट के लेटर्स में आता है. इसमें लास्ट लेटर में आया है, बट इट्स, मैंने इस तरह नहीं बनाता, मैं थोड़ा अलग है. कोई बात बट एच समवॉट है, कोई भी आ रहा है, एम एन एच, तीनों में से कोई भी एक लेटर आ जाए. एनीवन एल्स? एक ही लेटर आया है एन का वैसा, और पूरे उसमें कहीं नहीं है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. और कोई? बस दो ही लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा भी एन है. अच्छा ठीक है, जागृति का भी आ गया. चलो, एनीवन एल्स जानना चाहते हो किसी और की राइटिंग में आ रहा है तो बताओ प्लीज, अगर किसी के आ रहा है तो. सेम या स्वेतलीना, क्या है ये, सॉरी, रेज्ड हैंड. ओके, my screen was freezed, so I didn't get it. What does it mean from the last 10 minutes? Okay, I am not getting it. ऋषभ देख लेना वो मैसेज जो आ रहा है कि what exactly she is trying to say. Sure, ma'am. All right. देखिए, अगर ये वाला मैसेज भी आ रहा है ना, तो this means what? हम होते हैं ना कि कहीं पर, चाहे वो M के अंदर आए, चाहे H के अंदर आए, चाहे N के अंदर आए, if anything, अगर आप बड़े पेपर के ऊपर लिखेंगे या आप थोड़ा ज्यादा राइटिंग लिखेंगे तो मे बी यू कैन बी एबल टू फाइंड इट. तो ये आप अपने नॉर्मल नोटबुक्स जिनके अंदर आपने ऑलरेडी नोटबुक में राइटिंग अगर आपकी है तो वहां पर भी चेक कर सकते हो. दीज लेटर सिंपली मीन्स कि आपको किसी की कोई, यू आर अ फ्रीडम लवर. आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपको प्रेशर डाले. प्रेशर डाल के आपसे काम नहीं निकलवा सकते, सिंपल. आप प्रेशर नहीं डालेंगे, और अगर प्रेशर डाल रहा है कोई पर्सन तो आप उससे बोलोगे कि भाई मुझसे बात मत कर थोड़ी देर के लिए, या फिर मुझसे भी इसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो मैं करूंगा ही नहीं उस चीज को, और हम करते ही नहीं. अब मम्मा बोल रही है सुबह बेटा कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, उठ जाओ. मम्मा आप बोल रहे हो मैं उठ जाऊंगा, अपने आप उठ जाऊंगा, मत बोलो मुझसे, मैं उठ जाऊंगा. तो ये वाली चीजें जो होती है ना, फादर के साथ भी होती हैं, बेटा पढ़ लो, एग्जाम आने वाले, बेटा पढ़ लो, नेटफ्लिक्स बंद कर दो, इंस्टा बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो. बट हम कहते हैं मैं कर लूंगा, आई नो, मुझे भी पता है मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं कर लूंगा. तो दिस इज व्हाट फ्रीडम लवर. वी डू नॉट लिसन डिस्पाइट ऑफ नोइंग दिस फैक्ट कि हमें पता है हमारे लिए अच्छा क्या है, हमें पता है एग्जाम्स में नंबर लाना हमारे लिए अच्छा है, हमें अभी इस वक्त पढ़ना हमारे लिए अच्छा है, या जो हमें काम करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. बट स्टिल वी थिंक कि हमारे लिए अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे ग्रेटिफाई कर रहा है, दैट इज ग्रेटिफाइंग माई सेंसेस नाउ. और मुझे ऐसा लगता है, एंड बैक ऑफ द माइंड एक मेरे अंदर फियर आ रहा है. कौन सा फियर आ रहा है? यार एग्जाम्स आने वाले हैं, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, कर लूंगा, चलो कोई नहीं, जब करने बैठूंगा तो हो जाएगा. एक फियर वो भी है, और यहाँ पर ये भी है कि भाई इस वक्त मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, आई एम डिलेइंग दैट. लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा डरा हुआ है, और जिसकी वजह से अननोइंगली प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है. और हम कोई भी हैबिट को क्रिएट करने के लिए कंटिन्यूएशन में जब उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, सेम चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है. समवॉट इट हैज बिकम योर हैबिट. तो इस तरीके का जो फुट स्प्रेड अगर किसी के भी लेटर में आता है, लेटर एम का जो लास्ट पार्ट रहता है, लास्ट वाला जो सेगमेंट हम्प रहेगा, इसके अंदर थोड़ा सा लेग स्प्रेड आ जाता है. एच के अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है, या फिर एन के अंदर देखने को मिलता है. इफ इट इज कमिंग लाइक दिस, दैट मीन्स यू आर अ फ्रीडम लवर, यू डू नॉट वांट anybody's pressure on you. And this is one thing कि आप नहीं सुन रहे हो, डिस्पाइट ऑफ यू नोइंग इट, कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, आप नहीं कर पा रहे हो. तो ये भी एक तरीके से आपको डिले करने में आपको हेल्प करता है.
कि आप सुन नहीं रहे हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक कैसे करने में? हम राइटिंग सुधार देंगे तो ठीक हो जाएगा मैम? हाँ, राइटिंग सुधारने के बाद वंडर्स हो जाते हैं। राइटिंग सुधार के आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आपको जो चाहिए, आपको पता चल रहा है ना ये मैसेज इसके अंदर यही है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आप लोग सब नोटिस कर रहे हो जिनकी राइटिंग में ये है ना? आप लोग सारे के सारे नोटिस कर रहे हो। द सेम थिंग एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, वो सेम टू सेम आप नोट कर रहे हो। एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो सकते हैं बट स्टिल इट इज देयर। ठीक है, द सेम थिंग यहाँ पर आप लोगों का ये राइटिंग में अगर इस तरीके का G Y या हो सकता है J में भी इसी तरीके का स्ट्रोक आता हो कि दिस डज नॉट हैव अ कंप्लीशन, ये यहाँ तक आया, इसके बाद हो सकता है बेंड स्ट्रेट भी हो सकता है, इस तरीके से हाफ कर्व भी हो सकता है, बट इट्स नॉट गेटिंग कंप्लीटेड। इसका क्या मीनिंग रहेगा? इसका मीनिंग ये रहेगा कि जो आप काम करने वाले हो, समवेयर यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन नहीं हो रही है उसके अंदर, डिटरमाइन, अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपना पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगा पा रहे हो, या जो भी आपने कुछ काम करना है या जो भी टास्क आपने हाथ में लिया है, समवेयर आपकी विजनरी अप्रोच उसकी तरफ नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से अगेन वी आर डिलेइंग द स्टार्ट। अच्छी बात है विधि, अगर मैच नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, आपके अंदर गुड क्वालिटीज हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स कि जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो वंडरफुल, दैट्स मार्वलस। ठीक है, कोई ऐसा है जिसकी राइटिंग में इस तरीके के G Y या J आते हो? इस तरीके का फॉर्मेशन आ रहा है किसी की राइटिंग में? नहीं आ रहा, तो मतलब आप लोग सारे के सारे डिटरमाइन लोग हो, इसीलिए कि आज गूगल मीट पे आप लोग बैठे हो। डिटर्मिनेशन पक्का है कि मीटिंग का लिंक देखा आपने और ज्वाइन कर लिया, तो आपका डिटर्मिनेशन उसके लिए अच्छा है कि नहीं है? यस मैम। चलो ग्रेट, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ऋषभ अभी कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर INT भी है। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू नो इस तरीके का आई कौन लिख रहा है जिसके डॉट्स थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं? क्लोजली चेक करो, जिसके जो डॉट हैं, ये डॉट जो है ये थोड़ा पीछे की तरफ लग रहा है, दैट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। समटाइम्स आगे की साइड है, पीछे की साइड नहीं। कोई बात नहीं, आगे की साइड में चलेगा। टी का जो क्रॉस बार है वो खाली एक साइड में टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड में ज्यादा है, राइट साइड में थोड़ा सा कम है किसी का ऐसा? दो ही लोगों का मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पर, और किसी का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अगर इस तरीके का किसी की पर्सन की राइटिंग के अंदर अगर आते हैं ट्रेट्स, आई स्पेशली स्मॉल केस लेटर आई एंड स्मॉल केस लेटर टी के अंदर, तो ये हमारा जो क्रॉस बार या डॉट्स अगर लेफ्ट साइड की तरफ लगते हैं, तो दैट मींस दीज काइंड ऑफ पीपल दे लव टू बी टुवर्ड्स द लिटिल, दे आर जस्ट कीपिंग देमसेल्फ लिटिल बैकवर्ड, मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा पुल करके रखते हैं, कहीं पर भी मूव फॉरवर्ड करने से पहले मूव फॉरवर्ड एकदम से इजिली नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है कि कोई एक ओबीडियंट बच्चा होता है, उसको बोलो बेटा ऐसा काम कर लो, तो बोले ओके आई विल डू इट, लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं ये बोलते हैं ओके कर लूंगा बट नॉट नाउ, कर लूंगा या कर लूंगी बट नॉट नाउ। तो ये नॉट नाउ है कि एनी टास्क विच इज बीन गिवन दे आर नॉट रेडी टू डू इट और दे डोंट वांट टू डू इट नाउ, और वो कहते हैं बाद में कर लूंगा, और जो वो बाद में करने की टेंडेंसी होती है तो वो डिले की तरफ उनको पुल कर देती है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाले ट्रेट्स इनके अंदर भी क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग में नहीं है, आपके किसी नोन की राइटिंग में, आपके छोटे भाई बहनों की राइटिंग में, मे बी यू कैन जस्ट गाइड देम बाय चेंजिंग द हैंड राइटिंग, एनीवन कैन चेंज देयर लाइफ। आपको जो चाहिए आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने हैंडराइटिंग के अंदर चेंजेस लाके आप उसको अक्वायर कर सकते हो। गुड मेमोरी चाहिए आपको, जो भी चीजें चाहिए, गुड रिलेशनशिप चाहिए, सॉफ्ट कम्युनिकेशन चाहिए आपको, गुड कम्युनिकेशन चाहिए आपको, जो भी चाहिए यू कैन जस्ट गेट इट, इट इज जस्ट इफ यू नो द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द लेटर्स। ऋषभ नेक्स्ट स्लाइड पे चले क्या? आई थिंक
ये हमें इसका फॉर्मेशन सीखना था यहाँ पर। फॉर्मेशन बनाना था, तो लेट मी जस्ट चेक इट। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड, इसको प्रेजेंटेशन को एक बार बंद करना। लेट मी जस्ट स्टार्ट द व्हाइट बोर्ड। आप ही कर सकते हो क्या? स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड। Ma'am, I think you would also have option of whiteboard. अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट चेक शेयर विद पीपल। दो ही लोगों के साथ आ रहा है कि आई कैन शेयर विद ओनली 2 पीपल? व्यूअर लेट मी सी। देख, सबको दिखाई दे रहा है क्या? ये तो दूसरी विंडो खुल गई भाई। We can see it in the chat box. Like there's a link. ऊपर में गूगल मीट का लिंक होगा, वहां पे जाके ब्रिंग इन द कॉल ले आओ। नई विंडो है ना उसमें, ओके वहां से कॉल के अंदर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को इसमें हो रहा है, मे बी आई कैन जस्ट शेयर द करेक्ट फॉर्मेशन। आप लोगों को उसका एक पिक्चर भी भेज सकते हैं। आई डोंट नो इसमें, लेट मी सी डू इट। पहला लेटर हम लोगों ने कौन सा सीखा था? जो इस तरीके का जो आप लोग एंड बनाते हो ना, तो उसकी जगह आप नॉर्मल एंड लिखना शुरू कर दो सबसे पहले तो। मेरे को एक्चुअली इसका हो नहीं पा रहा। आई एम नॉट एबल टू डू इट। नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा। व्हाइट बोर्ड, आई एम नॉट एबल टू वर्क ऑन द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में वहां पे जाओगे ना, व्हाइट बोर्ड एक नई स्क्रीन में ओपन होएगा। नई आई स्क्रीन एम में स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड आ रहा है। आई एम ऑन द न्यू व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। यस मैम। और ऊपर मैम यहाँ पे मैम गूगल मीट का लोगो होगा, उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है, उस पे क्लिक करो। उसके अंदर आएगा ब्रिंग इन द कॉल। अच्छा एक मिनट, लेट मी जस्ट ब्रिंग द कॉल हियर। ओके, यस मैम। अलाउ। अभी दिख रहा है आप लोगों को? No, ma'am, it's not visible right now. It's not visible. मेरी तरफ से स्टार्ट हो चुका है वैसे। आप लोग मेरे को इसके व्हाइट बोर्ड के पैनल में साइड में आ रहे हो, आप लोग दिखाई दे रहे हो। ओके चलो कोई बात नहीं। आई डू वन थिंग, आई जस्ट शेयर द करेक्ट फॉर्मेशंस विद यू। बना के आप लोगों को आई शेयर विद जागृति एंड शी कैन शेयर इट, क्योंकि यहाँ पर इट्स डिफिकल्ट। हो नहीं पा रहा यहाँ पर। शैल आई कैंसिल इट नॉर्मली, या कुछ और भी करना पड़ेगा इसमें? मैम ये व्हाइट बोर्ड आपको शो हो रहा है मैम? ये मैंने स्टार्ट किया है अभी फिलहाल। हाँ शायद मेरे पास यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है शायद, आई थिंक, और ऐड पीपल इन ग्रुप है। कोई बात नहीं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। चलो, नहीं हो पा रहा। अब इसको एग्जिट कैसे करूं? जस्ट क्लोज द विंडो मैम। लाइक व्हाइट बोर्ड में मैम एक प्रेजेंट इन द मीटिंग का भी था।
ओके, चलो कोई बात नहीं, आप आई शेयर दिस राइटिंग, आप लोगों को वैसे मिल जाएगा ये करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द राइटिंग। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट स्लाइड में। correct formation will share. Okay, next. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ और चीजें सीख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द राइटिंग ट्रेट्स हम और क्या कर सकते हैं, विजुअल क्यूज कैसे कर सकते हैं। स्टिकी नोटपैड्स जो होते हैं ना, स्टिकी नोटपैड्स, उसके अंदर अपने टास्क लिख के अपने लैपटॉप के ऊपर लगा लो, अपने फ्रिज के ऊपर लगा लो, अपनी अलमीरा के ऊपर लगा लो, अपनी स्टडी के ऊपर लगा लो। तो एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू, उसको एक लिख के उसके ऊपर वहां पे पेस्ट कर दो। एंड एवरी टाइम व्हेन यू सिट ऑन योर टेबल या चेयर, जो भी आप करते हो, तो उसको आप निकालो, देखो एंड जस्ट डू इट। अपने लिए रिमाइंडर सेट करना, एवरीबडी नोज अबाउट दिस कि रिमाइंडर हमें कैसे सेट करने होते हैं। गूगल के ऊपर रिमाइंडर डालना, फोन के ऊपर रिमाइंडर्स डालना, या कोई कैलेंडर सेटिंग ऐसी कर लो कि अगर आपके डेस्क के ऊपर कोई कैलेंडर है तो आप उस कैलेंडर को सेट कर लो। तो दीज आर फ्यू सिंपल बेसिक स्टेप्स जिनको हर कोई कर ही सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप रेगुलर इसको करोगे तो इट विल हेल्प यू कि आपको एक टू डू लिस्ट बनाने की एक आदत हो जाएगी। एंड reward yourself every time when you define a task for yourself and when you complete it, treat yourself किसी भी तरीके से। आपको अगर चॉकलेट पसंद है, अगर आपको टॉफीज पसंद है, या आपको लगता है कि मुझे एक मूवी देखनी है आज, जैसे आज वीकेंड है तो बहुत सारे लोग प्लान भी कर रहे होंगे, अगर आपको देखना है तो जस्ट डिफाइन योरसेल्फ कि भाई मैं ये टास्क कंप्लीट कर लूंगा, देन ओनली आई गो एंड वॉच मूवी, या मैं तभी फोन को हाथ लगाऊंगा या तभी करूंगा। अपने लिए कंडीशन डिसाइड कर लो यहाँ पर कि मुझे, मेरे लिए क्या अच्छा है। डिसाइड योरसेल्फ, लेट योर ब्रेन, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सेल्फ नोटेड डाउन पॉइंट्स, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, वो आइडेंटिफाई करो। एंड देन उसके बाद द गुड पॉइंट्स व्हेन यू अचीव वन बाय वन, उसको अचीव करना शुरू कर देते हो, या जो टास्क आपको करने हैं और वो करना शुरू कर देते हो, जस्ट टेक इट एंड ट्रीट योरसेल्फ। अपने आप को पैम्पर करना बोलते हैं ना, खुश करना, तो अपने आप को खुश कैसे करोगे? ऐसे ही फिजूल की चीजों के लिए अपने आप को खुश मत करो। व्हेन यू डू समथिंग, व्हेन यू अचीव समथिंग, तब उसके बाद अपने आप को ट्रीट करना। एंड दिस विल हेल्प यू टू बी मोटिवेटेड ऑलवेज। आपकी खुद की एक ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा, आपकी खुद की एनर्जी हाई रहेगी उसको करने के लिए। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं एक बार। इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन बोनस टिप्स व्हिच आई वांट टू प्रोवाइड। यस, अगर आप लोग अपने रूम में इस तरीके की रेक्टेंगुलर वॉल क्लॉक लगाओगे विद ऑल नंबर प्रेजेंट, रेक्टेंगुलर वर्टिकल रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये वर्टिकल और रेक्टेंगल है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। तो इसका ध्यान रखना कि अगर आप ऐसी कोई वॉल क्लॉक अगर लगा लेते हो अपने बेडरूम में, अपनी स्टडी पर, या अपनी डेस्क के ऊपर भी अगर आप रेक्टेंगल शेप की कोई डेस्क क्लॉक भी रख लेते हो, दिस विल हेल्प यू। टू डू लिस्ट बनाना, एक नोटपैड को असाइन करो और उस नोटपैड के ऊपर डेली डेट डाल के अपने जो भी टास्क हैं, कल वाले टास्क, वो एक दिन पहले आप डिसाइड करो, एक दिन पहले लिख के जाओ। नेक्स्ट डे आने के बाद जैसे जैसे आप टास्क करते रहो उसको टिक करते रहो, और टिक करने के बाद, एंड इनफैक्ट इफ यू वांट, इस टू डू लिस्ट का जो आपका नोटपैड रहता है उसको भी आप अपनी नॉर्थ वेस्ट वॉल के ऊपर लगाओ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो आपको मोटिवेट करती रहती है और वो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है। इसलिए जो भी अकॉम्प्लिश करने वाले जो हमारे मेजरली चीजें रहती हैं, अगर हम उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो वो हमें मोटिवेट करती रहती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, रेक्टेंगल वॉल क्लॉक। हाँ जी, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कॉर्नर नहीं होएगा कि मैम? देखो मेजरली हमारा जो, अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो दिल्ली का है ही ऐसा कि वो मेजरली कॉर्नर की तरफ ही आती है। कॉर्नर की तरफ नॉर्थ आता है, नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्टली वेस्ट एंड नॉर्थ के सेंटर में आता है। वेस्ट भी हमारा कॉर्नर में पड़ता है, नॉर्थ भी कॉर्नर में पड़ता है। इफ यू आर एबल टू सी इट, मेरे पीछे जो ये वाला कॉर्नर है, दिस इज द ईस्ट। मेरे सामने वाला जो कॉर्नर है दैट्स नॉर्थ, तो नॉर्थ कॉर्नर में आ रहा है। दिल्ली का इस तरीके का जो हमारे जो लैंड का जो नक्शा कटा हुआ है वो इसी तरीके का है, तो इट्स ओके।
आप कंपास के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मोबाइल के ऊपर भी कंपास होते हैं, यू कैन जस्ट चेक इट द डायरेक्शन। ठीक है, रात को सोते वक्त खुद से अपने पैरों की मसाज करना, पैरों की इन द सेंस फीट्स की मसाज करना, कोई भी क्रीम ले लो, कोई भी लोशन ले लो, अपने पैरों को अच्छे से मसाज करके देन स्लीप। आप नेक्स्ट डे उठोगे, आपको एनर्जी आपकी डबल मिलेगी, आपकी नींद भी, अगर आप 8 घंटे सोते हो आपको ऐसा लगेगा कि आप खाली 6 घंटे में भी एकदम फ्रेश हो गए, बिना अलार्म के आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाएगी। तो वो भी एक आपके रूटीन की अच्छी शुरुआत होगी। इट इज जस्ट कि रात को सोने से पहले 5 to 7 मिनट्स आपने ये करना है, 5 मिनट्स ऑन लेफ्ट फुट, 5 मिनट्स ऑन द राइट फुट। एनी ऑइंटमेंट, अगर आप देसी घी यूज करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर देसी घी नहीं यूज करते तो एनी लोशन, एनी बॉडी लोशन विल डू। ठीक है, ये करोगे सर्दी भी चली जाएगी आपकी और आपको अच्छा लगेगा। आप लोग सुबह जल्दी उठेंगे, आपके पूरा रूटीन आपका सेटअप हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो दिस विल हेल्प यू। ठीक है, तो अगर आप किसी के क्वेश्चंस हो कोई इनसे रिलेटेड, यू कैन आस्क। थर्ड, with yourself, वो कैसे करें, लाइक मोटिवेट करने के लिए अगर आपको आपको अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो टेम्पटेशन होती है ना, वो कहाँ जाती है, इधर वो हमारी कोई कुछ खाने पीने की चीजों में जाती है, या कोई ऐसी होती है कि मूवीज वगैरह की तरफ टेम्पटेशन जाती है। आज के टाइम में यही टेम्पटेशन है, या फिर हमारी जाती है कि कहीं घूम के आ जाएं, तो वो वाली एक टेम्पटेशन होती है ना। तो ये सारे हम जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी तरफ टेम्पटेड होते हैं, तो वो अपनी चॉइस को प्रोमिनेंट रखो कि यस if you like Chinese, if you like continental, or if you like anything, you know, पिज्जा वगैरह भी पसंद है, तो just mark yourself until unless I will not complete this project, I will not eat this, या इस टास्क के कंप्लीट होने के बाद ही I will treat myself with good amount of treatment, अपने आप को खुद से ट्रीट करना। तो दैट मीन्स यू आर प्लीजिंग योर सेंसेस, द ग्रेटिफिकेशन जिसके बारे में बात करी थी ना, कि हम अपने आप को सेटिस्फाई करें। तो जब हम किसी चीज से अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हैं, अब अगर डॉक्टर आपको आके बोल दे कि भाई आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, घी नहीं खाना, तो हम तब तक नहीं खाते कि जब तक हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल ना आ जाए। या किसी पर्सन को बोलते हैं कि भाई आपको शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है, या फिर आपका डायबिटीज बॉर्डर लाइन पर है, अब आपको शुगर नहीं खानी है, तो हम टेम्पटेड तो होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए तो उसकी वजह से वी स्टार्ट अवॉइडिंग इट एंड वी स्टार्ट टेकिंग द सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने आप की जो टेम्पटेशंस है उसको थोड़ा सा आप पुश करके उसको एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए लेके आओ, उसको किसी टास्क के साथ असाइन कर दो, नॉट ओनली यू बट एनीथिंग एल्स, खाने पीने की नहीं, मूवी जाने की, कहीं घूमने की, कहीं पार्टी करने की, तो वो टेम्पटेशन को भी आप यहाँ पर इसके साथ जोड़ सकते हो एज अ ट्रीट, कि जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज आपको पसंद है, उसको आप अपने आप को ट्रीट करने के लिए, अपने आप को प्लीज करने के लिए, उस टास्क के कंप्लीट होने के बाद, जो टास्क आपने हाथ में लिया, हैबिट क्रिएट करना चाहते हो ना कि फॉर 30 days आई एम गोइंग टू गेट अप बाय 5 o'clock, एंड वंस आई स्टार्ट बिल्डिंग दिस हैबिट ऑफ गेटिंग अप 5 o'clock in the morning, आई गो फॉर अ वेकेशन, 2 days वेकेशन टू ऋषिकेश, रिवर राफ्टिंग के लिए जाऊंगा मैं। तो जस्ट डिफाइन योरसेल्फ, अपने गोल्स को इस तरीके से असाइन करो, अपने आप के लिए असाइन करो एंड वर्क ऑन दैट ऑन डेली बेसिस। और इसके लिए आप टू डू लिस्ट कि आज की ये डेट है, डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड। जब मैं फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लूंगा, 10 days का एक प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, आई विल हैव अ चॉकलेट। 20 days कंप्लीट हो गए तो आई विल हैव अ पिज्जा। 30 days कंप्लीट हो गए तो आई विल गो फॉर अ वेकेशन, 2 days वेकेशन विद माई फ्रेंड्स। या अपने साथ एक ग्रुप बना सकते हो, अपने लोगों का, अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना सकते हो। तो along with writing the alphabets, these kind of tasks, small tips, this will help you to boost your energy. ठीक है, और किसी को कोई डाउट, क्वेश्चंस? समटाइम्स हमें काम मिल रखा होता है एंड कोई कुछ बोल देता है एंड कुछ मीन्स मूड खराब हो जाता है। Then I start listening the songs. तब मैं मूड, तब 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है, पता नहीं चलता है। when I start watching movies or Netflix, तो काफी टाइम बीत जाता है उस टाइम पे।
एक्चुअली होता है ये होता है, ये इमोशनल सेटबैक्स जिन लोगों के साथ होते हैं उन लोगों के साथ होता है। तो उस केस में आप लोगों को ऐसी कोई अगर ऐप है, थोड़े टाइम के लिए उसको अपने मोबाइल से निकाल दो उन ऐप्स को, या सॉन्ग्स वगैरह अगर निकाल रखे हैं, आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं तो उनको थोड़े टाइम के लिए डिलीट कर दो, क्योंकि वो होंगे नहीं आपके पास तो आप उसको सुनोगे नहीं। अगर मूड खराब भी है देन ऑल्सो यू विल नॉट डू इट। अपनी पॉकेट में एक स्लिप बना के रख लो, प्रैक्टिस द अल्फाबेट्स विच आई हैव गिवन यू। उन अल्फाबेट्स को अब राइट फॉर्मेशन आ जाएगा, तो व्हेन यू फील कि मुझे इस वक्त सैड लग रहा है, आई वांट टू लिसन टू दोस सॉन्ग्स या मुझे सुनना है, सो इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट डूइंग द राइटिंग वर्क। Sure, ma'am. Writing सुधारने के लिए any tips and राइटिंग सबकी अच्छी होती है, उसके लिए सुधारने के लिए नहीं होते, ट्रेड सुधारने के टिप्स होती है, और वो until unless will not find out कि कोई ऐसा ट्रेट है जो आपको नुकसान कर रहा है, उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं। बाकी राइटिंग चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सबकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है अपने आप में। उनकी पर्सनालिटी जो है वो राइटिंग उनकी वही बताती है, what they are from inside and outside, this is their handwriting which is making them like that. अगर आप खुद से बिलीव करते हो कि you are a good person, you have all the good qualities, that means those are there in your writing. कोई दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता होता है उस चीज को। अब करेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो। एनालिसिस तो हमसे ज्यादा अच्छा अपने बारे में कौन कर सकता है, yes, ma'am. राइट? क्वेश्चंस, Ma'am. मोर क्वेश्चंस प्लीज। बहुत अच्छे लोग हैं यार, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैम यस, मेरे क्या कहते हैं, जस्ट एज यू सेड कि आई और टी का उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरा राइट हैंड साइड पे गया है। अच्छा ठीक है। And sometimes my eye, along with the dot, they were both tilted in the left direction. So would I consider it in the given? Yes, 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 yes. If it is tilted towards the left side, that means somewhat थोड़े बहुत traits वैसे आ रहे हैं, procrastination वाले traits आ रहे हैं। That's exactly not the procrastination, but you are in habit of delaying something, or maybe you have some task in your hand which you think that you have capability of doing it, but you are not able to do it. तो कभी कभी ऐसा होता होगा। So along with the whole letter I, मेरा सब कुछ left में जा रहा है, and that means delaying, right? अच्छा अच्छा, you mean to say the slant of the writing that is going towards the left side? Yes. So according to that, my नहीं, dot में कभी कभी मेरा eye straight है, and sometimes my eye is a little bit like tilted towards left. No. So वो dot भी left में ही है। नहीं, that has another meaning altogether. That has Okay. another meaning altogether. Okay. ठीक है, more questions please. समझ आया आप लोगों को? समझ आई है क्या सिखाया आज? Yes, ma'am. Shall I ask few questions? आप लोग बताओगे? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. I will try my best. Okay. अच्छा बताओ हितेश, आप प्रैक्टिस करना चाहोगे अब इसकी? Yes, ma'am. I will practice the H क्योंकि मेरा H थोड़ा है। Okay. और एंड? एंड तो मैं पूरा ही लिखता हूँ हमेशा से। अच्छा पूरा ही लिखते हो, वो वाला नहीं है, ठीक है। तो कितने दिन प्रैक्टिस करोगे राइटिंग की? At least a week. एक वीक से हो जाएगा? मेरे में हो जाना चाहिए। करके देखना, एक वीक से कुछ भी नहीं होगा। आपको करना क्या है, जब तक आपकी रनिंग राइटिंग में ये ट्रेड्स नहीं आते हैं तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड बी कॉन्शियस व्हाइल राइटिंग इट। बी कॉन्शियस कि जब आप कुछ भी लिखने बैठते हो और ये पर्टिकुलर लेटर आता है तब आपको थोड़ा स्लो होना है, तभी आप इसकी प्रैक्टिस ढंग से कर पाओगे। अदरवाइज यू विल ऑल्सो कीप ऑन थिंकिंग कि मुझे करनी है और मैं करूंगा, तो वो कभी भी होगी नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और मसाज कौन करने वाला है अपने फीट्स को सोने से पहले? ये हितेश नहीं करने, सारे मलाइका भी करने वाली है। और ऋषभ ने नहीं करना? मैं तो रोज ही करता हूँ वैसे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो somebody inspired या अपने आप ही? नो मैम, अपने आप ही। चलो बहुत ही सेल्फ केयर थिंग। कूल, दैट्स नाइस।
So अभी हमारे पास 10 minutes हैं, तो अभी क्या करें फिर? Screen Ma'am, sharing. you wanted to show that whiteboard thing, so it's not working. Should I help you in some way? हाँ बताओ मेरे को, if I could be able to do it तो कर सकते हैं. So, I think that if you look at the bottom, right bottom, there is an option of activities. हाँ, I am able to see those activities. Yes, and if you click on that and then go and select whiteboarding. हाँ, whiteboarding, clicked on that. Start a new whiteboard. Shall I click on that? Yes. Yes, ma'am. Okay. And I am able to see it here. It is sharing with only 2 people, With 2 people. Who are they? Vriddhi and Jagriti. Okay. Allow anyone to Okay. link to view. With the link to view. There is an option like Google Meet का एक option होगा, उस पे scroll down करोगे, there is second option, view, use it as a presentation, कि वो सबको दिखेगा presentation. अच्छा, is Second option. there any way I can share my screen, maybe on Zoom or my notepad? I can start this. If I could be able Yes, to do ma'am. it. Yes, ma'am. There is an I option. will stop sharing here and then you can share it from your end. Yeah, let Maybe me I should see. stop sharing from my side. Yes. In that case, I'll try. Yes. Okay, where is the option of sharing? Present now. Present now. Okay. Yes. Your entire screen. Fine, I'll do it this way. So we can see your screen now. You're able to see. अच्छा. Yes. Base दिखाई दे रहा है मेरी screen का. So I need to. Yes, ma'am. अच्छा, मेरे को इसको क्या करना है अभी ये? स्टार्ट कर लो ना, स्टार्ट अ व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे. यहाँ पे ये दिख रहा है, पेंट ब्रश दिख रहा है आपको यहाँ पर? Yes, we Yes, can ma'am. see paintbrush. Okay, Yes, okay, ma'am. great. चलो, I'll start with this. ठीक है, पहला लेटर हम लोगों ने लिखा था कि यहाँ ये हैंग हो रहा है, सॉरी. हाँ, थोड़ा सा. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग लिख सकते हैं एंड. ये शायद हैंग हो गया इसमें. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन ऑप्ट फॉर दिस. Sure. And now we have this H वाला जो आपको बताया ना, ये जो हमारा लेग स्प्रेड आ जाता है. ठीक है, ये वाला जो स्प्रेड आ रहा है M और N के अंदर थी, तो हम यहाँ पर H को इस तरीके से नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं ना, तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि व्हेन यू आर मेकिंग इट, इसका जो हम्प है ये हम टुवर्ड्स राइट साइड जाए, एंड जो इसका फुट है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट, जो हमारी बेस लाइन होती है ना, जो हम लोग कॉपीज के ऊपर लिखते हैं, तो दैट बेस लाइन इट शुड कम लाइक दैट इक्वली. ठीक है, हम लोग नॉर्मली बनाते हैं ना, तो हम लोग यू जैसा शेप बना देते हैं इसका एच का. तो ये वाला नहीं बना के, नीदर दिस वन, इंस्टेड ऑफ दिस वी स्टार्ट मेकिंग इट लाइक दिस. Fine, this hump and this one, and then we had this कौन सा G, इसका सर्कल पूरा करके G का जो ये एक्सटेंशन होता है, इसके एक्सटेंशन को हमने बाहर निकालना है, ऊपर इस लूप को कंप्लीट करना है. यहाँ पर ये वाला जो लूप है ना, इसको कंप्लीट करना है. सेम विद द Y. ये थोड़ा मेरा हैंग हो रहा है, पता नहीं, शायद स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, Y again I'll make this G here. I के ऊपर जब हम बनाते हैं तो स्ट्रेट I and dot exactly on top of it.
A dot has to be a dot only. कई बार ये slashes में हो जाता है, कई बार ऐसे हो जाता है, कई बार पीछे की तरफ चला जाता है. Just avoid making it. When you are making an I, तो I के ऊपर dot exactly a dot. And T जब बनाते हैं हम, तो T का जो cross bar होता है, it is a plus sign. A plus sign on the top, towards the top side. जैसे अगर हम 4 lines वाली copy की बात करते हैं, अगर उसमें क्योंकि वो 3 mm spacing रहता है ना, जो स्कूल मॉडल के अंदर हमें सिखाया जाता है, इट्स लाइक टी जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये हमारा एग्जैक्टली ये प्लस ऊपर की तरफ होना चाहिए. अगर थोड़ा असेंडिंग बनाएंगे तो चलेगा, दैट्स ओके, बट इट हैज टू बी लाइक दिस. इक्वली क्रॉस, इसके आप क्रॉस टी क्रॉस बार को आप इक्वली बनाएंगे. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द लेटर्स. इनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, यू विल सी. अगर किसी की राइटिंग में अगर ये जी और वाई अगर कंप्लीट नहीं भी होते हैं, इफ यू स्टार्ट डूइंग इट किसी भी तरीके से अगर नहीं भी होते तो भी आपको फायदा करेंगे. या फिर कई बार ऐसे होता है कि हम लोग जो बेस लाइन होती है, जो हमारी जिसके ऊपर हमारा ये लेटर्स रेस्ट करते हैं, उसको हम बेस लाइन बोलते हैं. तो उस बेस लाइन के ऊपर अगर आप उन लेटर्स को एग्जैक्टली उनको रेस्ट करवाएंगे. Sorry to interrupt in between, ma'am. So when you were explaining about why and that dot thing, so Vidhi has commented that I don't make a dot, ma'am. I make a circle. Circle is also a big problem because these kind of people are a bit, they grab attention of others easily and they like colorful things. So instead, that has a good quality as well as a bad quality too, because that is the time taking process, and whatever you want to achieve in your life, that is the delayed process. So वो भी एक डिले कर देता है. तो instead always make a dot. J के ऊपर हम सर्कल बना देते हैं, I के ऊपर सर्कल बना देते हैं. तो instead of that, make a dot, exactly a dot. तो इससे क्या होता है कि आफ्टर मैरिज ऑल्सो जो लड़कियों को एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं, वो एडजस्टमेंट इश्यूज भी नहीं आएंगे. सर्कल हैज द टेंडेंसी, इट लुक्स ब्यूटीफुल बट स्टिल इट अट्रैक्ट अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जो हमारी मैरिड लाइफ के अंदर, जो एडजस्टमेंट के अंदर या इन लॉज के अंदर या न्यू फैमिली के अंदर एडजस्टमेंट में भी थोड़ा इश्यूज लाता है. ठीक है. ओ नहीं, ये मेरा बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, बस इतना ही कर लो. बाकी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. लेटर्स तो आपको बनाने आते ही हैं. तो दिस इज वाई, दिस इज जी, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द एच. hump towards the right side. Instead of making this end, make end. And T का cross bar exactly like a plus sign towards the upside. Dot on the I. There are two types of R. One is like computer R, and one is we are writing in normal English calligraphy. So it makes a difference कि which R we are using. R की तो छोड़ दो, क्योंकि अभी हम R is a different letter altogether, क्योंकि उसका मीनिंग ही डिफरेंट है. आज हमने जो लेटर सेलेक्ट किए हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड किए हैं. मेरा जो टी है उसका जो क्रॉस बार है, पूछो फिर से, क्या क्वेश्चन पूछा था. सॉरी यार, थोड़ा सा है. वापस पूछो क्वेश्चन. मेरा जो टी है वो इंस्टेड ऑफ क्रॉस बार अपर साइड, वो बीच में सेंटर में आता है क्रॉस. सो व्हाट डज दैट मीन? सारी ग्राफोलॉजी इधर ही सीख लो. उसका ये होता है कि व्हाट यू आर थिंकिंग, जिस तरीके के टास्क आप डिफाइन अपनी लाइफ में सोचना चाहते हो, द काइंड ऑफ लाइफ यू आर एक्सपेक्टिंग, उसको आपको अचीव करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है. मे बी यू आर थिंकिंग कि मैं ऐसा कर लूंगी या मैं इस तरीके की ग्रेडिंग ले लूंगी, लेकिन मैं बहुत मेहनत करने के बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट. अपनी डे टू डे लाइफ में यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट लेटर. है ऐसा कि नहीं है? जवाब तो दे दो. है मैम, ऐसा काफी ज्यादा सच है मैम ये तो. हैंडराइटिंग इज अ मैजिकल जर्नी. हैंडराइटिंग. चलिए, ऑलमोस्ट हमारी ऑलरेडी सेशन कंप्लीट है. कुछ और किसी का लास्ट क्वेश्चन हो तो वी कैन जस्ट टेक एंड देन वी कैन
conclude the class. So participants, if you have any questions, you can shoot your questions. Otherwise, we will wrap up the session. So I don't think, ma'am, we have any more questions left. So any concluding remarks for us? Remarks is that you need to practice it, and as I had already given you a tip that until unless these correct formation does not come in your running writing, you are not sorted. Once you start noticing this कि आप speed से लिख रहे हो, then also you are able to make you are able to find those correct formations in your writing. That means that's coming in your personality. और अगर आपको लगता है कि मैं उसको कैसे करूँ, कैसे आइडेंटिफाई करूँ, एटलीस्ट 30 days तक आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो. Just simply select these letters and just practice it. Make the correct formation and use only ball pen. No gel pens, no felt tip pen. Okay, ma'am. Okay. Thanks, ma'am. It was a great session. But ma'am, R के बारे में थोड़ा बता देते तो. R is a letter of the creativity. So आज का टॉपिक हमारा क्रिएटिविटी के ऊपर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाएंगे. बिकॉज R बहुत फॉर्मेशंस होते हैं R के बनाने के. There is a mechanical R, there is a creative R, there is a mathematical R. बहुत सारे R हैं. Okay, आपको ऐसा लगता है कि R खाली दो ही तरीके से बनता है, but in actual it has a lot of formations. Every letter has got a lot of formations, depending on how you are making your personality. ठीक है जी, thank you so much everyone, and thank you so much. Thank you for this insightful Thank you, session, ma'am. ma'am. Thank you so much. Thank you. Take care.